solutions. From today onwards, we are going to solve the paper of NET, especially the previous year paper starting from way number 1994. I believe that some of you who are taking the class may not have been born in the year 94 when this paper was conducted. I was 9-year-old back then. So it was that old. Okay. So, but still, nonetheless, paper is paper. तो चलिए शुरू करते हैं ऊपर वाले के नाम पर. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन है गाइस, द रिनेसा स्टार्टेड इन. तो देखेंगे सारे बच्चे रिनेसा स्टार्टेड इन इटली. ठीक है. सारे नोट करते रहेंगे, फैक्ट्स कॉपी ले लेंगे बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में. 1453 में वी सॉ दैट फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल हुआ था. और कॉन्स्टेंटिनोपोल वी नो वाज अ सिटी इन टर्की. ओके, it was a city in Turkey and used to be an epicenter of Roman Empire. So fall of Constantinople hua and we see the collapse of Roman Empire. All the European scholars fled from Constantinople to a place in Italy called as Florence. I have already discussed this place, Florence. So Florence in Italy, okay, is considered as the epicenter of Renaissance in Europe. All right, so very important. आइए धीरे से आगे बढ़ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव. ब्यूटीफुल लाइंस expressing the mortality of human life. These lines have been penned down by Thomas Gray. Okay, elegy written in a country churchyard. One of the greatest impersonal elegies. The poem was published in the year 1751 and is considered to be one of the greatest elegies ever written. Okay, by character, Aristotle means. So characters refer to personages in drama, means the people who drive the plot forward. Okay, and in which work Aristotle gave the term? He gave the term in the work Poetics. Very important work. Okay, so that is there. Amor vincit omnia. In Chaucer's The Prologue means wonderful, beautiful story. Amor vincit omnia. Yes, anyone in the class? Amor vincit omnia. What does it mean? Who used to have this? B is the answer. Love conquers all. And who used to have this? Prioress. Prioress used to have a brooch kind of locket, BROOCH, on which are inscribed in Latin or Latin, Amor vincit omnia. Okay. Now next question, the sonnet form. The sonnet form was introduced in England by. So very important question, guys. So it was introduced by Wyatt. We know Thomas Wyatt introduced Petrarchan sonnet. Petrarchan sonnet. Thomas Wyatt and Surrey introduced. Surrey later on refined it and it became English sonnet. Okay, and Wyatt okay, is known as the one of the silver poets. Okay, silver poets were the group of aristocratic court poets. Okay, so Wyatt was there, Surrey was there, some other poets were also there. Question number 6, which one of the following novels of Dickens is based on his own life? So the answer is very important, David Copperfield. Okay, very important question, guys. David Copperfield was roughly published in the year 1850. It is considered as Bildungsroman. Bildungsroman, which means condition, which means the inner growth of the protagonist. Bildungsroman means inner growth of the protagonist. Very important. Okay, David Copperfield. Are you getting my point or not? So it is based entirely on his life and it is one of the autobiographical novels. Okay, so question number 7, Dryden.
in his essay of dramatic poesy rejects tragicomedy. Now, this is a very important point, guys. Now, please pay attention to this question. This is an essay of dramatic poesy. We know we read this work in criticism in MA courses in English in India. So we see that tragicomedy, he rejects tragicomedy because when I read the answer for this question, most of the times I saw that he did not reject it, he rather supported tragicomedy. So in a way, the question begs an explanation, and I would rather love to correct the question than to answer it somehow. But still, if we go by the options, and means if I were to give the option of out of the given option, I would go with me, because in somewhere he just for a moment drifted, and just for a very short, you can say, for a very brief time, or I would say in very few words, maybe one or two sentences, he did mention that there is some unity of tone that is violated, but most of the times he has praised it. Okay, so you can write in your copy that he praised also this tragicomedy. In fact, he praised it. You can write why did he praise. It's a very important question, guys. So it's an ambiguous question. Please pay attention. So he praised it because it has realism, because it shows the reality of life. He tells that life is a mixture of black and white, where we have tragic incidents as well as some comic incidents as well. So he praised tragicomedy because of its realism. And somewhere he did mention that yes, there is some violation of the unity of tone. We can say tone here means action. Okay. Okay, so let's move on to question number 8. What is the subtitle of the prelude? So guys, prelude we know is the autobiography of Wordsworth. Subtitle is the growth of a poet's mind. Okay, prelude का जो subtitle है वो क्या है? The growth of a poet's mind. Prelude was completed in 1805, but it was published in 1850. Okay, and it is called as the first spiritual autobiography in verse. Please note करेंगे. First spiritual autobiography in verse. Very important. Question number 9 क्या है? Love is not time's fool. बहुत ही फेमस सनेट बाय विलियम शेक्सपियर. आइए थोड़ा इस पे कुछ लिख के लाए हैं आपके लिए, सारे साथी गौर फरमाएंगे. सो ये किसका सनेट है? सनेट नंबर 116 है और ये शेक्सपियर का सनेट है. ठीक है, क्या खूबसूरत लाइन है. सारे साथी मेरे साथ. लव इज नॉट टाइम्स फूल दो रोजी लिप्स एंड चीक्स within his bending sickles compass come. And this is one of the most important lines of Shakespeare. Love alters not with his brief hours and weeks, but bears it out even to the edge of doom. So what is he trying to say? He's trying to say the immortality of love. Okay, love is not time's fool. And here, which figure of speech, guys? Which figure of speech he is showing us? So love is not time's fool में क्या हो गया? Personification. और it is talking about the immortality of love. Sonnet number 116. आइए बढ़ते हैं जल्दी से. The Renaissance. The Renaissance is written by, it is written by Walter Pater. Okay. Walter Pater is known as the father of art for art's sake. Father for लिख लें, father of कर दीजिए चलिए. Father of art for art's sake in England. Art for art's sake के father हैं इंग्लैंड में. ठीक है, अरे भैया समझ में आ रहा है सबको? वॉल्टर पैटर. ठीक है, आइए इनके बारे में पढ़ते हैं. इन्होंने क्या आंसर लिखे हैं? इन्होंने लिखा है द रेनेसा एक ऐसे 1873 में सीरीज ऑफ ऐसे बाय वॉल्टर पैटर
written between 1867 and 1877 and was published as a collection in multiple editions. Aestheticism वाले, ठीक है. In each essay, Pater critiques a specific Renaissance artist or poet and emphasizing the importance of embracing the beauty and experience of art rather than judging a work of art by its accuracy or the moral standing. देखो, एस्थेटिसिज्म का बेस पढ़ाया था आज सुबह ऑफलाइन में भी. क्या बताया था कि मोरालिटी को अपने आप से मोरालिटी अपने आप को मोरालिटी से अलग करता है, वही बात है. और ये लाइन सारे बच्चे लिख लेंगे, आर्ट फॉर आर्ट से की बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा. इस पर जरा चर्चा करके बता दो जल्दी से, फिर आगे बढ़ूंगा. नॉट द फ्रूट ऑफ एक्सपीरियंस बट द एक्सपीरियंस इटसेल्फ इज द एंड. जी, बहुत ही गहरी लाइन कह गए इसमें. इन शेक्सपियर डॉक्टर जॉनसन सेज देयर इज नो मोरल पर्पस. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. डॉक्टर जॉनसन ने क्या लिखा है? प्रीफेस टू शेक्सपियर. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेगी पूरी क्लास. प्रीफेस टू शेक्सपियर बोला है. ये इंपॉर्टेंट वर्क है 1765 में शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म में, और उन्होंने क्रिटिसाइज किया है शेक्सपियर को कई जगह पे. उन्होंने इनफैक्ट शेक्सपियर के लिए एक लाइन बोली है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, सारे बच्चे नोट कर लेंगे. ही सेक्रीफाइस्ड वर्च्यू टू हिज ओन कन्वीनियंस. क्या मतलब है इसका? डॉक्टर जॉनसन बोल रहे हैं शेक्सपियर पर, ही सेक्रीफाइस्ड वर्च्यू टू हिज ओन कन्वीनियंस. भाई हमें पता है ना ये नियो क्लासिकल क्रिटिक है डॉक्टर जॉनसन, तो मोरालिटी की बात करेंगे. तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार सद्गुणों की तिलांजलि दे दी है. फिर हिंदी में लिख दूं तो आगे बढ़ते हैं. द मिस्टेक्स ऑफ अ नाइट इज द सब टाइटल ऑफ She Stoops to Conquer. She Stoops to Conquer 1773, a very important play also called as a great first example of anti-sentimental comedy. एंटी-सेंटिमेंटल कॉमेडी का एग्जाम्पल है भाई, ठीक है. और 1770s में हम देखते हैं गोल्डस्मिथ एंड शेरिडन इंट्रोड्यूस्ड एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडीज, ठीक है. और इसी को हम लोग देखते हैं कि लाफिंग कॉमेडी भी कहा है. जी बिल्कुल. We have got a very diverse company today, मेरे प्यारे साथियों. इसको लाफिंग कॉमेडी भी कहते हैं. क्या कहते हैं? लाफिंग कॉमेडी. जी, आमीन. सो लाफिंग कॉमेडी, एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी का जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट था वो क्या था? नोट कर लेंगे, आयरनी. क्या था? आयरनी. आयरनी का बहुत ज्यादा यूज किया हुआ है इन्होंने इस अपने प्लेस में, तो ये नोट कर लेना. और इसका सबसे ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल है शी स्टूप्स टू कॉन्कर, जिसका सब टाइटल है द मिस्टेक्स ऑफ अ नाइट. गोल्डस्मिथ, मिड 18th सेंचुरी. द रोमांटिक एज इन इंग्लैंड इज डिस्टिंग्विश्ड फॉर इट. सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को टटोलता हुआ. सारे बच्चे जल्दी से आंसर दे दो. रोमांटिक एज इन इंग्लैंड इज डिस्टिंग्विश्ड फॉर इट्स. रोमांटिक एज जो है इंग्लैंड में किस चीज के लिए डिस्टिंग्विश की जाती है? जल्दी से जल्दी. कोई दिक्कत की बात ही नहीं है इसमें, तो लिरिकल पोइट्री जो है सबसे फेमस रहा था. ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं गाइस. हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड. इनमें से कौन सा प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड का मेंबर नहीं था? Dear learners, Pre-Raphaelite Brotherhood was formed in the year 1848. It's a group of painter poets where three poets were the founding members. You can write the code. It's MRH, Millite Rossetti Hunt. So you have got Hunt here, Millite here. It's Millite, not Millais. And Rossetti, of course, was the leader of the pack. So barring all the three, we have got the answer as Oscar Wilde. He was, of course, not a Pre-Raphaelite. He was an aesthete. Moving on, next question. Eliot's objective correlative signifies the writer's ability to. Now, this is what I say conceptual question. ऐसे क्वेश्चंस अगर बना लोगे तो नेट के पापा भी आपकी जेब में होंगे. नेट के पापा भी आपकी जेब में होंगे, यानी जेआरएफ निकलेगा. देखो तो जरा, पढ़ सबने रखा है थोड़ा बहुत, दम लगा के हिस्सा. मेरे प्यारे साथियों, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव में वो क्या कहते हैं कि एक कोई इमोशन है, इमोशन को हम किसके थ्रू दिखाते हैं? हम किसी
जिसे हम कह सकते हैं कि इंसिडेंट या इवेंट या ऑब्जेक्ट के थ्रू दिखाते हैं। इमोशन को हम ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। इमोशंस क्या है, हमारी स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेट ऑफ माइंड को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, डी आंसर होगा। ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स के बीच में कोरिलेशन नहीं करते, ये खाली कंफ्यूज करने के लिए कोरिलेटिव से कोरिलेट ऑप्शन दे दिया था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। हम अपने डिजायर्ड स्टेट्स ऑफ माइंड, इमोशंस को कोरिलेट करते हैं ऑब्जेक्ट से या इवेंट से, ऑब्जेक्ट या इवेंट से। था कि नहीं प्यारा क्वेश्चन, बताओ, इसलिए नेट है कि नहीं। तो डी जिन्होंने बताया मैं उनको रॉयल सैल्यूट करता हूँ। सी जिन्होंने बताया कोई बात नहीं, सितारों के आगे जहां और भी हैं, अविश के इम्तिहान और भी हैं। आगे जुड़ते रहेंगे धीरे धीरे तो आपको समझ में आता रहेगा। तो आंसर है सी, हैरिक। हैरिक कैवलियर पोएट है। हर्बर्ट डन और मार्वल, ये तीनों क्या है, ये तीनों क्या है, मेटाफिजिकल पोएट है। ठीक है। एडोनिस इज एन एलिजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ, हाँ बेटा इसीलिए कह रहा हूँ ना। एडोनिस किसने लिखी है, सबसे बहुत बढ़िया, जॉन कीट्स की डेथ पर लिखी गई है। ठीक है, मैंने बताया था एडोनिस इज वन ऑफ द पर्सनल फेवरेट्स। ठीक है, शैली ने लिखी है कीट्स की डेथ पर। ईयर बताओ तो जरा जल्दी से। 1821, क्या है ईयर, 1821। ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा नेट के लेवल का क्वेश्चन दे रहा हूँ। बियोस करके एक ग्रीक राइटर है, नोट कर लेना। इन्होंने क्या लिखी है, एडोनिस। इनकी स्पेलिंग और उनकी स्पेलिंग में एक आध फर्क है। बियोस एक ग्रीक पोएट है, इन्होंने भी लिखी है एडोनिस। नोट कर लेना, नेट के लेवल का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बियोस एक ग्रीक पोएट है, इन्होंने एडोनिस लिखी है। एडोनिस एक ग्रीक शेफर्ड है। नोट कर रहे हैं सब लोग, ताबड़तोड़ फटाफट। चलिए आइए, एक सुपड़ा साफ करते हुए चल रहे हैं पूरी क्लास में, जोश खरोश। और इसी के साथ एक बहुत ही, जिसे मैं कहता हूँ हलवा क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेक पोएट, इनमें से कौन सा लेक पोएट नहीं है। तो लेक मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर ये मत सोचना कि झील का नाम है। आप लोग जानते हैं कि लेक एक डिस्ट्रिक्ट है, बहुत ही फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी। तो लेक पोएट में थे कोलिज, सदे और वर्ड्सवर्थ। ऑफ कोर्स तो ये तीन थे। उसने नॉट पूछा है तो शैले इज द आंसर। ठीक है, आइए जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। अब आ गया कॉन्सेप्ट का बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। कोई भी साथी आंसर की या इससे देखने की कोशिश मत करना, जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाओगे। अपने आंसर्स करना, भले ही सारे आंसर गलत हो जाएं। ठीक है, ऑनेस्टी की अपनी एक वैल्यू है और वो कभी भी खत्म नहीं होने वाली है। ठीक है, तो साथियों, हम एक कहावत कहते हैं कि नैन्सी जी आपका सपोर्ट चाहूंगा, लिली मैडम आप सब लोगों का सपोर्ट, कि क्लेवरनेस में विन यू अ मोमेंट बट ऑनेस्टी विल विन यू अ डेकेड। जी, मजा आ रहा होगा आपको। और आइए नेगेटिव कैपेबिलिटी के इस आंसर पर थोड़ा मंथन करें। उन्होंने क्या बोला है नेगेटिव कैपेबिलिटी को, उन्होंने क्या, मैंने क्या बोला था, अनकॉन्शियस efforts to write poetry, unconscious efforts to write poetry when you are completely in a flow of emotions। बट अब यहाँ पर बी और डी में से उन्होंने फिर यहाँ पर एक बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। तो नेट का लेवल का क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे उन्होंने ऐसा भी बोला है नेगेटिव कैपेबिलिटी को, इट शुड कम एज इजी एज लीव्स टू अ ट्री। जैसे कि पेड़ों में पत्तियां आ जाती हैं खुद ही, ऐसे ही जो है नेगेटिव कैपेबिलिटी के बारे में बताया है। तो अब यहाँ पर बी में पैसिव सबऑर्डिनेशन टू एक्सपीरियंस का मतलब यह है कि कोई एक्सपीरियंस हो रहा है पैसिवली, पैसिवली मतलब आपने उसको पूरा सरेंडर कर दिया और आप उस एक्सपीरियंस में बहे चले गए। और डी में बोल रहा है वो डी पर्सनलाइज्ड एम्पैथी विद एक्सपीरियंस, यानी कि अपने आप को, ध्यान से सुनना आप जो बोल रहा हूँ, एम्पैथी का मतलब क्या होता है। एम्पैथी मतलब मैंने हिंदी में भी बताया था आपको, एक होता है सहानुभूति और एक होता है सह अनुभूति। समझ पा रहे हैं, सहानुभूति मतलब जब आप दूसरे के साथ साथ खुद को रखते, या जब आप मतलब दूसरे के लिए एक सिंपैथी का भाव रखते हैं। लेकिन सह अनुभूति जब जो दूसरे को पेन है वो एग्जैक्टली exactly जब आप फील कर रहे हैं, लेकिन जब आप फील कर रहे हैं उस समय आप खुद नहीं है वो,
मतलब आप अपने आप को अलग कर रहे हैं एज अ पर्सन, वही टीएस एलियट का जहाँ वो इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री कहता है, अपने को एज अ पर्सन, एज अ पोएट अलग कर रहे हैं, और एज अ फीलिंग जब आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो उसको अलग कर रहे हैं। तो इसको उन्होंने बोला है नेगेटिव कैपेबिलिटी। आप स्लेव नहीं है अपने इमोशंस के, पैशन के, आप एम्पैथेटिक हैं उस एक्सपीरियंस के, आप उसको फील भी कर रहे हैं, और उसको फील करते हुए आप वो खुद नहीं है, आप न्यूट्रल वे में, ध्यान से समझना, न्यूट्रल वे में जैसा वो एक्सपीरियंस फील करवाना चाह रहा है वैसा जब आप फील करने लग जाएं, दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव कैपेबिलिटी। आप ध्यान से समझिए, दो लाइनों में फर्क, आप जैसा फील करना चाह रहे हैं दैट इज नॉट नेगेटिव कैपेबिलिटी, आपको कोई एक्सपीरियंस जैसा फील करवाना चाह रहा है और आप बिल्कुल वैसा ही कर ले रहे हैं, दैट इज नेगेटिव कैपेबिलिटी। बोलो, आया मजा? सो प्लुरैलिटी इज नेसेसरी फॉर, अब देखो जेएस मिल ने, ये एक सोशल फिलोसोफर थे, सोशल फिलोसोफर थे, ठीक है, और क्या थे, एक एक्टिविस्ट, फेमिनिस्ट भी थे, फेमिनिस्ट भी थे, और 19th सेंचुरी के थे। इनका एक ऐसे है ऑन लिबर्टी, क्या है, ऑन लिबर्टी, ऑन लिबर्टी से लिया गया क्वेश्चन। और प्लुरैलिटी को वो क्या मानते हैं, वो एक इवोल्यूशन ऑफ स्टेट, मतलब किसी भी स्टेट का मतलब है यहाँ पर राज्य, मतलब वैसा राज्य नहीं, स्टेट का मतलब कंट्री से है, सोवरेन स्टेट, संप्रभुता रखने वाला राष्ट्र। तो उसके इवोल्यूशन यानी कि उसके विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मांगते हैं प्लुरैलिटी। प्लुरैलिटी आपको पता है बहुआयामी होना, बहुआयामी यानी कि प्लूरलिज्म, विविधता में, हम कहते हैं भारत एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी का देश है, तो विविधता जहाँ होगी वहां ही स्टेट का डेमोक्रेटिक राइज होगा, ठीक है। तो बस यही है, डी आएगा इसका आंसर। अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, बहुत ही प्यारा सा कोटेशन है साथियों, बहुत ही प्यारा। तो लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग हम जानते हैं, अलेक्जेंडर पोप ने लिखी है लाइंस, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई जगह फाइल्स में या कई जगह आंसर्स गलत है, तो मैं आपको बता रहा हूँ वो टेक्निकली चेक करके बता रहा हूँ। आइए जल्दी से देख लेते हैं, छोटा सा कोटेशन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, ड्रिंक डीप, जल्दी से नोट कर सकते हैं, और टेस्ट नॉट द पायरियन स्प्रिंग, ठीक है। अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, या तो पूरा चखो, ड्रिंक डीप, और टेस्ट नॉट द पायरियन स्प्रिंग। अब ये पायरियन स्प्रिंग, स्प्रिंग यहाँ पर एक फव्वारा होता था, यूरोप, ये यूरोपियन या इंग्लिश, मुझे एग्जैक्टली इसकी सोर्स नहीं पता है। तो पायरियन स्प्रिंग एक तरीके से एक ये माइथोलॉजिकल स्टोरी कह लीजिए, कि जब वो फव्वारे को आप पीते थे उसका पानी, तो या तो वो आपको पूरा पीना है, अगर आप थोड़ा सा पी के चख के छोड़ देंगे तो वो आपके लिए, हेल्थ के लिए डेंजरस होता था। तो वही चीज एक मेटाफर के तौर पे कह रहे हैं कि इफ यू आर लर्निंग देन गो फॉर द होल कोर्स, डोंट गो हाफ हार्टेडली, ओके। समझ में आ रहे हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 22, एपोलॉजी प्रो विस्टा सुआ बाय न्यूमैन। तो न्यूमैन एंड केबल वाले हैं ये ऑक्सफोर्ड पोइट्री वाले, ट्रैक्टेरियन मूवमेंट भी लेके आए थे ये 1833 में, ठीक है। ट्रैक्टेरियन मूवमेंट भी कहते हैं हम इसको, विक्टोरियन एज के स्टार्टिंग में ही आ गए थे ट्रैक्टेरियन मूवमेंट। ये सारे स्कॉलर्स थे, रोमन कैथोलिक थे, क्या थे, रोमन कैथोलिक स्कॉलर्स थे, इन्होंने एंग्लिकनिज्म को छोड़ के रोमन कैथोलिक्स को ज्वाइन कर लिया था। तो ये जो है बाय न्यूमैन इज डिनंसिएशन ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म, सॉरी, डिनंसिएशन ऑफ प्रोटेस्टेंट, डिफेंस ऑफ रिलीजियस वैल्यूज, इनकी जो रिलीजियस वैल्यूज थी उनका डिफेंस माना जाता है। 22 का आंसर है डी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चार्ल्स किंग्सले ने अटैक किया था, इन पर लिख लेना, चार्ल्स किंग्सले ने इन पर अटैक किया था, और उसके अटैक में लिखा था इन्होंने एपोलोजो प्रो विस्टा सुआ, ये एक लातिन टाइटल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर। तो जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर के ऑथर हैं डैनियल डेफो। डैनियल डेफो हम जानते हैं अर्ली 18th सेंचुरी में एक गवर्नमेंट स्पाई जर्नलिस्ट, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एक बहुत ही ज्यादा आउटस्पोकन एक पर्सन के तौर पे जाने जाते हैं।
तो ये जो प्लेग ईयर था ये कब आया था भाई? 1665 में आया था। कब आया था ये प्लेग? रिकरेंस ऑफ ब्लैक डेथ चौसर के समय भी आया था और फिर 1665 में भी आया। चलिए, द चार्टिस्ट मूवमेंट। चार्टिस्ट मूवमेंट जैसे रिफॉर्म एक्ट आया था भाई, नोट कर लेना सारे बच्चे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है कोई टेंशन मत लेना, जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ लो। 1832 में रिफॉर्म एक्ट आया था विक्टोरियन एज की स्टार्टिंग में। तो विक्टोरियन एज की स्टार्टिंग में रिफॉर्म एक्ट आया भैया। तो चार्टिस्ट मूवमेंट सॉर्ट मतलब क्या, किस चीज का प्रयास करता था? तो रिफॉर्म एक्ट में क्या आया था 1832 में, जो हमारे फैक्ट्री वर्कर्स थे उनके राइट्स की बात की गई थी, वोटिंग राइट्स की ना। फैक्ट्री वर्कर्स को एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब वोटिंग राइट्स की बात की गई थी। ठीक है, तो उनकी बात हुई थी। तो इसमें हम देखते हैं कि चार्टर मूवमेंट, इट सॉट द एक्सटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द वर्किंग क्लास। ठीक है, तो डी आ जाएगा इसका आंसर। ये चार्टिस्ट मूवमेंट रिफॉर्म एक्ट का इवेंचुअल इवेंचुअल प्रोडक्ट क्या था? अर्ली 20th सेंचुरी में 1918 में, आई थिंक 1918 में वोटिंग राइट्स मिल गया था वुमेन को। वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन इन ब्रिटेन पहले 30 इयर्स तक की एज में मिला था, और फिर 1928 में आई थिंक मेरे ख्याल से 21 की एज में इनको वोटिंग, 21 एज एंड अबव वाली वोटिंग राइट्स वुमेन को मिल गया था। ठीक है, सफरेज मूवमेंट कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं? सफरेज मूवमेंट। वर्जीनिया वुल्फ इससे जुड़ी हुई थी भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सफरेज मूवमेंट इज वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन। तो वो पूरा रिफॉर्म एक्ट से जुड़ा हुआ पॉइंट है। ठीक है, कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, एज इट इज आ जाता है थॉमस डे क्विंसी का कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर। वन लाइनर आ रहा है लगातार। द डिक्टम ओनली कनेक्ट एपिटाइफ भी है, ये किसका है? E.M. फॉस्टर, पैसेज टू इंडिया वाले। ओनली कनेक्ट इनका एपिटाइफ भी है ये, एपिटाइफ। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं। द क्राइटेरिया ऑफ लीव्स ग्रेट ट्रेडिशन, F.R. लीविस है ये। F.R. लीविस बेटा, अगर आज याद होगा, आज सुबह बच्चों को कुछ मैंने टॉपिक दिया था होमवर्क में, वही देखो F.R. लीविस बार बार आ रहा है। तो इसका पर्पस क्या था? ग्रेट ट्रेडिशन का पर्पस क्या था? कि मॉरल पर्पस था इसका ना, मॉरल पर्पस, मोरालिटी को, ये जो ग्रेट ट्रूथ्स ऑफ लाइफ हैं उसको सपोर्ट करता है ग्रेट ट्रेडिशन। ठीक है, फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड सिग्निफाइज, अब फ्री ट्रेड का एक्चुअल मतलब है लेसेस फेयर, नोट कर लेना, LAISSEZ लेसेस फेयर। ये लेसेस फेयर करके भी पूछा है हमारे नेट में। तो ये 1992 में मनमोहन सिंह जब थे फाइनेंस मिनिस्टर, तो उन्होंने ओपन टू ऑल मार्केट कर दिया था, है ना। तो इसमें जो है फ्री ट्रेड में, तो फ्रीडम टू ट्रेड इन ऑल कम्युनिटीज हो जाएगा इसमें, क्योंकि ट्रेड विदाउट गवर्नमेंट कंट्रोल भी नहीं होगा, ट्रेड विद ओनली गवर्नमेंट कंट्रोल भी नहीं होगा, फ्रीडम टू एक्सपोर्ट एनीथिंग भी नहीं होना चाहिए ना। तो सी होगा इसमें, फ्रीडम टू ट्रेड इन ऑल कम्युनिटीज, लेसेस फेयर। कई लोग इसमें ये मानते हैं कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ही हट गया था, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने सर्टेन चेक्स लगाए थे और उसके बाद जो है लेसेस फेयर को लगाया था, स्मूथ ट्रांजिशंस ट्रेड में करने के लिए। कल्चर एंड एनार्की, मैथ्यू आर्नल्ड रिकमेंड्स द फ्यूजन ऑफ हेलेनिज्म एंड हिब्रेइज्म। कल्चर एंड एनार्की, मैथ्यू आर्नल्ड, पोएट है विक्टोरियन एज के। लामिया, लामिया हाफ सरपेंट हाफ वुमेन है भाई, माइथोलॉजिकल क्रिएचर है, हाफ सरपेंट हाफ वुमेन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, कीट्स ने लिखी है पोएम, बहुत इंपॉर्टेंट पोएम, माइथोलॉजिकल पोएम है। हाउ लॉन्ग डज रॉबिन्सन क्रूसो लिव ऑन द डेजर्टेड आइलैंड, इसका आंसर कहीं ना कहीं गलत लग रहा है मुझे। आप लोग इसका चेक कर लेना, इसको नेट से देख लेना। 21 ईयर्स एंड कुछ है। ठीक है, चेक करके मैं, हमारे ये साथी हैं उन लोगों को बता दे रहा हूँ, वो चेक कर लेंगे, ये गूगल कर लेंगे आप, इसमें कोई बड़ा ऐसा मेरी हेल्प की जरूरत नहीं है आपको। टेक प्लेस, तो ग्रेट एग्जीबिशन, जिसको हम लोग ग्रेट एग्जीबिशन ऑफ 1851 कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था। इसको क्रिस्टल ग्लास पैलेस भी कहते हैं, क्रिस्टल ग्लास पैलेस। इंटरनेशनल लेवल की एग्जीबिशन थी विच एक्चुअली शॉट द फेम of Britain into an international level. And this, you can say, Crystal Glass Palace exhibition was, the chief architect was Joseph Paxton. नोट कर लेंगे नाम, जोसेफ पैक्सटन, PAXTON। जोसेफ पैक्सटन इसके चीफ आर्किटेक्ट थे, और जो क्वीन विक्टोरिया थी उनके जो हस्बैंड थे प्रिंस एल्बर्ट इसके पेट्रन थे। और इसने इंटरनेशनल लेवल पे कल्चरली ब्रिटेन की सुप्रीमेसी को स्थापित किया। 1851 की ग्रेट एग्जीबिशन क्रिस्टल ग्लास पैलेस लंदन में लगी थी, ये बहुत दिनों तक लगी रही और बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट माना जाता है।
हाँ, हाइड पार्क में लगी थी, HYDE हाइड पार्क लंदन में। ठीक है, बहुत ही ज्यादा खर्चा किया गया था इसको सजाने में और लगाने में। ठीक है, ईट्स की लेडा एंड द स्वान। तो लेडा एंड द स्वान साथियों ग्रीक मिथ पर है। हम जानते हैं कि लेडा जो है, लेडा एक फीमेल है, और स्वान के रूप में गॉड आता है जिसका नाम है ज्यूस, ZEUS। तो ज्यूस गॉड है, वो एक स्वान के रूप में आता है, हंस के रूप में, और जो है सेक्सुअली पेनिट्रेट कर देता है लेडा को, और इनका कॉपुलेशन होता है, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ओवरऑल एक जो इनका ऑफस्प्रिंग पैदा होता है वो कौन होती है, हेलेना। और ये वही हेलेना है साथियों जो कि सेंट्रल कॉज है ट्रोजन वॉर का। ट्रोजन वॉर का सबसे बड़ा कॉज हेलेना ही तो है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही रिफ्लेक्टिव पोएम है W.B. ईट्स की, ये बताते हुए कि कैसे कैजुअल मोमेंट ऑफ यू कैन से सेक्सुअल, you can say of lust leads to such a significant event later on. अच्छा, इसका मिल गया भाई, इसका आंसर है 28 साल 2 महीने 19 दिन। ठीक है, इसका आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर भी मिल गया गाइस, बी है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन 34, द सोर्स ऑफ E.M. Foster's title Where Angels Free to Tread is taken from Pope। इसकी पूरी लाइन है, सभी साथी मेरे साथ। फूल्स रश इन, बेवकूफ दौड़े चले जाते हैं जहां पर देवदूत जाने से डरते हैं। फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। ठीक है, जल्दबाजी का काम हड़बड़ी का, कुछ इस तरीके का सेंस से दे रहा है। साथियों क्लास में मजा आ रहा होगा आपको थोड़ा सा। द लाइन्स थिंग्स फॉल अपार्ट सेंटर कैन नॉट होल्ड, सेकंड कमिंग की लाइन है भैया, बहुत फेमस। थिंग्स फॉल अपार्ट, चिन्हू अचेबे ने 1958 में इसको नॉवल ले लिया था। फिर द मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आंसर्स कई जगह गलत थे। द मूवमेंट फिलिप लार्किन का, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोइट्री का मूवमेंट है, इसका नाम ही द मूवमेंट था, ये 50s का मूवमेंट है। तो आंसर सी होगा इसमें। इसलिए बता रहा हूँ, जो आंसर मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से चेक करके मिलाना है। जॉन डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स क्लास में करा हुआ क्वेश्चन है, ड्राइडन ने बोला है ये। द लुनेटिक, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल इम्पैक्ट और कम्पैक्ट। ठीक है, मैंने बताया था इसका हिंदी ट्रांसलेशन बड़ा फेमस, एक बॉलीवुड का गीत आशिक मजनू आवारा, याद आ रहा है कुछ कुछ क्लास में। अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 39 में आ जाते हैं साथियों, अलेक्जेंडर फीस्ट क्या है, ओड है ड्राइडन का। हु सेड लाइफ इज नॉट अ लुमिनस हॉलो अ सेमी ट्रांसपेरेंट एनवलप, बहुत फेमस लाइन है, वर्जीनिया वुल्फ ने बोली है नोबेल क्रिटिसिज्म में। 41, इन विच बुक ऑफ गुलिवर ट्रेवल्स डस बाल्यबिरने फाइंड अ मेंशन। तो बाल्यबिरने वॉयज ऑफ लेपुटा में है, फ्लोटिंग आइलैंड। ठीक है, फिर द फ्रेज स्वीटनेस एंड लाइट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय मैथ्यू आर्नल्ड। फिर कार्लेल का सार्टर रेजार्टस, ये एक फिक्शनल बायोग्राफी है। ठीक है, ये एक सपोजिटली परपेटली वर्ड आया, परपेटली मींस जैसा कि बताया गया है, लेकिन ये एक्चुअली फिक्शनल बायोग्राफी नहीं है तो ये नॉवल, बट ये फिक्शनल बायोग्राफी के रूप में लिखा गया है, जैसे ऑरलैंडो लिखा था वैसे ही। हॉपकिन का कर्टल सोनेट क्या है भाई, हॉपकिन का कर्टल सोनेट 10.5 लाइन का सोनेट है, बेसिक्स ऑफ सोनेट्स में पढ़ते हैं हम लोग। गॉड इज रेफर्ड टू एज द प्रेसिडेंट ऑफ इमॉर्टल्स इन टेस। ठीक है, ऑसबॉर्न का लुक बैक इन एंगर एक सेमिनल मूवमेंट था, 1956 में रॉयल कोर्ट थिएटर लंदन में परफॉर्म हुआ था ये। मौर्या इज ए कैरेक्टर इन राइडर्स टू द सी बाय J.M. सिंज, वन एक्ट ट्रेजेडी है, बहुत इंपॉर्टेंट। J.M. सिंज केल्टिक रेनेसा के बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोएट एज वेल एज अ पेंटर, रोजेटी, इसमें तो कोई नो ब्रेनर, कोई दिक्कत ही नहीं है। विच इंग्लिश पोएट रेफर टू इंग्लिश एज दैट स्वीट सिटी विद हर ड्रीमिंग स्पायर्स, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैथ्यू आर्नल्ड। हमारे साथ अभी एक साथी जुड़ी हुई है यूके से, तो ऑक्सफोर्ड को देख लीजिए भाई, ड्रीमिंग स्पायर्स का शहर कहा गया है। कभी जाके उस फीलिंग को, उस एक्सपीरियंस को महसूस करिएगा और हमें जरूर लिखिएगा। स्पायर्स का मतलब होता है बहुत ऊंची मीनारों वाली बिल्डिंग। तो ये सब थोड़ा बहुत पढ़ के मैं बुकिश बता पा रहा हूँ, मैंने फील तो नहीं किया उस सेंस को, बट फिर भी। कवर हर फेस माइन आइज डेजल शी डाइड यंग, बहुत ही रिमार्केबली ड्रामेटिक लाइंस। तो साथियों ये थी, फर्डिनेंड बोल रहे हैं, उनका भाई बोल रहा है अपनी बहन के को एक तरीके से उसका मर्डर प्लॉट करने के बाद, उसको सक्सेसफुली मर्डर करने के बाद बोल रहा है। बहुत ही सेंसेशनल लाइन है, जैकोबियन ड्रामा से, डचेस ऑफ मल्फी।
ठीक है, तो आई होप साथियों आप लोगों को पसंद आया होगा ये पावर पैक्ड प्रेजेंटेशन। ठीक है, यूं ही जुड़े रहिए।